میں گزارش کروں گا عزت مآب عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب، چیئرمین صوفی فکر انٹرنیشنل برطانیہ، آپ کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت فیضان صدیقی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم، صد عزتوں کے قابل جانشین حضور شیخ العالم، وارث مسند حضور شیخ العالم، عظیم محقق اسلام، پیکر اخلاص و محبت، پروردہ آغوش ولایت، حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر پیر سلطان العارفین صدیقی نقشبندی الازہری دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ، نیریاں شریف، چانسلر محی الدین اسلامک یونیورسٹی نیریاں شریف تراڑکھل آزاد کشمیر، و دیگر محققین علماء کرام، بطور خاص عظیم محقق استاد پروفیسر ڈاکٹر نجم الدین کوکب صاحب زید مجدہ، برادر مکرم جناب محترم حضرت علامہ مفتی محمد بابر قادری صدیقی صاحب و دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، ثناخانان شیریں لساں اور حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اہل محبت، دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور اہل دل عشاقان کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میری خوش بختی ہے کہ جب میں سرزمین برطانیہ سے پاکستان پہنچا، پہلے ہی ہفتہ جاری تھا، قبلہ ڈاکٹر صاحب زید مجدہ سے ملاقات اور زیارت کا شرف ملا۔ آپ کے حکم پر آپ کے سامنے لب کشا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس آستان پاک کے فیض کو جس طرح دنیا بھر میں پھیلا رہا ہے اور پھیلا ہوا ہے اور یہ فیض جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس فیض کو تا صبح قیامت دوام عطا فرمائے۔ میں چونکہ برطانیہ میں رہتا ہوں، وہاں دین کی خدمت کرتا ہوں، اور کئی دفعہ قبلہ شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ ادارہ جو پہلے چرچ تھا، پھر آپ نے ملینز پاؤنڈز لگا کر اسے خریدا اور مسجد بنا دی۔ آج وہاں پر نمازی ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کے اندر کئی دفعہ حضرت کا شرف حاصل ہوا، وہاں کے امام صاحب میرے دوست، کئی دفعہ قبلہ حضرت صاحب کے فرمان کے مطابق وہاں خطاب کا شرف ملا میلاد پاک کی محفل پاک پر، اور ویسے بھی حاضری ہوتی رہتی ہے، اسی طرح برمنگھم میں بھی اور لندن میں بھی۔ تو یہ جو آنکھوں دیکھی بات ہوتی ہے اس کی تو پھر بات ہی اور ہوتی ہے، لہٰذا یہ آنکھوں دیکھی بات ہے کہ سرزمین برطانیہ ہو یا اسکاٹ لینڈ ہو یا ویلز ہو،
उस पर भी हुजूर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की शबाना रोज जो मेहनतें थी, उनका असर हजारों अफराद बल्कि लाखों अफराद तक कहा जाए तो बजा होगा, आज भी मौजूद है। और दिन रात उशाकान जो हैं वो इस्तिफादा कर रहे हैं और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और औलियाए किराम के अदब के साथ और इस सूरत में जुड़े हुए हैं। आज का जो उन्वान है बहुत ही खूबसूरत है, असरार और रमूज हज। आपको पता है कि जो सूफिया हैं वो उनका मौजू ही बताया करता है कि बात कहां की कहां से हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सूरह हज है आयत नंबर 27, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यअतूका रिजाला। ए हजरत यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे इब्राहिम आप लोगों को बुलाइए, वअज़्ज़िन आवाज बुलंद कीजिए, यूं कह लें अजान दीजिए, यूं कह लें मुनादी कीजिए, यूं कह लें अनाउंसमेंट कीजिए कि बैतुल्लाह बन चुका, तामीर एक बार फिर बैतुल्लाह की कंप्लीट हो चुकी। अब ए मेरे प्यारे खलील आप लोगों को आवाज दीजिए और लोगों को कहिए कि आ जाओ। तो कोई पैदल चलकर बैतुल्लाह का हज करने आएगा, कोई सवारियों पर बैतुल्लाह का हज करने आएगा, कोई एनिमल्स पर आएगा, कोई किसी अपने सोर्स के थ्रू आएगा, कोई किसी सोर्स के थ्रू हज करने पहुंचेगा। लिहाजा आप लोगों को बुलाइए और लोग आएंगे। तो 4000 साल गुजर गए, तब से लेकर आज तक बैतुल्लाह शरीफ का हज जारी है और इसके अंदर अहकामात की तब्दीलियां होती रही, हत्ता कि हमारी इस्लाम के अंदर जो हज है उसका वही तरीकाकार है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। और आज का हाजी जो हज करता है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऐन मुताबिक है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हज है, ये हज सिर्फ फर्ज की अदायगी नहीं है, बल्कि ये सफर इश्क है, ये इश्क का सफर है, ये मोहब्बत का सफर है, ये प्यार का सफर है, ये डीप जर्नी है। अगर कोई इसको हज समझकर और किसी अहले दिल के साथ जुड़कर और किसी साहिबे दिल की निस्बत की बदौलत जो हज करे, बस फिर वो हज नहीं करता सिर्फ, बल्कि यूं कह लें वो सिर्फ फर्ज अदा नहीं करता, बल्कि वो हुजूरी वाला हज करता है। एक है फर्ज अदा करना, फर्ज अदा हो गया, पर एक है हुजूरी वाला हज। ये जो हुजूरी वाला हज है ना, ये अहले दिल करवाते हैं। और ये जो हुजूरी वाला हज है, ये जो डीप थॉट्स वाला या फिर डीप जर्नी है हज के अंदर, ये वो ही है कि इसकी वजह से इंसान रहता तो रुए जमीन पर है, करता तो तवाफे काबा है या फिर सफा व मरवा के चक्कर लगाता है, पर उसके चक्कर सिर्फ सफा व मरवा पर नहीं होते, कहीं और होते हैं, यार की बारगाह में होते हैं। इसी तरह एक और आयत मुबारका है सूरह बकरा आयत नंबर 158, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नस सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियों में से है। अच्छा या रब्बुल आलमीन, निशानियों का क्या मतलब है? और निशानी किसे कहते हैं? निशानी कहते हैं याददाश्त को, निशानी कहते हैं हिस्टोरिकल प्लेस को, निशानी कहते हैं किसी की याद में रहने वाली जगह को या फिर इंसान को या फिर किसी भी चीज को जो किसी की याद में याद को ताजा करे, तो उसे निशानी कहते हैं। निशानी अलामत भी होती है, निशानी आयत को भी निशानी कहा जाता है। तो फरमाया सफा पहाड़ी, सफा जो है, और मरवा ये भी पहाड़ी है, तो ये दोनों अल्लाह की निशानियां हैं। जनाबे किबला डॉक्टर नजमुद्दीन कौकब साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इस बात का हवाला दे चुके कि वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उन्हें ऑनर देता है और उनका अदब करता है, तो वो अल्लाह ताला के मुत्तकी बंदों में से एक बंदा है। लोग तो सारे ही हैं, कलमा पढ़ने वाले तो बहुत ज्यादा हैं पूरी रूए जमीन पर,
8 अरब इंसानों में 2 अरब इंसान वो हैं जो कलमा पढ़ने वाले हैं, और उन 2 अरब में 80% वो हैं जो सहीहुल अकीदा, उस शाकान मुस्तफा, औलिया के गुलाम और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अदब के पैकर मुसलमान रहते हैं। लिहाजा ये वो लोग हैं जो अल्लाह के निशानियों का अदब करते हैं। और निशानी क्या है? अल्लाह की एक प्यारी वलिया के जहां कदमैन शरीफैन लग गए, हजरत सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा, जहां उनके कदम लगे अल्लाह ने उसको अपनी निशानी करार दिया, अपनी निशानी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं निशानी क्या है। हुजूर क़िबला शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उनके बनाए हुए मंदिर से मस्जिद यानी चर्च से मस्जिद में मैं गया, पिछले रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर खताब के लिए हाजिरी दी, तो वहां पर उनका वो बेड लगा हुआ था। जब भी आप एडनबरा तशरीफ ले जाते स्कॉटलैंड में, तो वहां पर आप आराम फरमाते। वो मुसल्ला बिछा हुआ था जहां आप नमाज अदा फरमाते। उसी कमरे में बैठने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, दीगर उलमाए किराम भी थे। तो फिर वो क्या था, उन्होंने कहा आप इसके ऊपर बैठ जाएं। मैंने कहा हमारी जरूरत, ये निशानी है अल्लाह के वली की, तो हम वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह वाले हैं, तो इसके बराबर भी नहीं। मैं तो इसके साथ सीना लगा के बैठूंगा और टेक लगा के बैठूंगा, ताकि दुनिया में भी और कब्रो हशर में भी इनकी टेक हमें मिल जाए। मेरी बात समझिए? तो जिसको अल्लाह के वली की टेक मिल जाए, बस फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और फिर वो नुमाया होता है, फिर वो यूनिक ऑन द अर्थ होता है, और फिर वो एक अलग से होता है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे बंदों की टेक दे दे। और टेक वाले कौन लोग हैं? जो निशानियों की ताजीम करते हैं। तो निशानी किसी की याद को कहते हैं। मैंने बेड का नाम इसलिए लिया, और मुसल्ला है जहां नमाज का नाम इसलिए लिया, किसी की याद को निशानी कहते हैं। या अल्लाह, दौड़ी तो तेरी वलिया थी, तू इसे निशानी अपनी कह रहा है, या अल्लाह इसमें क्या राज है? तो अल्लाह ताला ने यूं कह लें, ये जो होता है ना बिटवीन द लाइन्स या बैनुस सुतूर जो बात होती है, वो अहले हक समझाते हैं, वो अहले दिल समझाते हैं। इसके अंदर जो बात है वो ये है कि कदम तो मेरी वलिया के लगे थे, मगर अल्लाह फरमाता है ये मेरी निशानी इसलिए है कि वो वलिया मेरी प्यारी बंदी थी, वो मेरी मकबूल बंदी थी, वो मेरे नबी की एक माँ थी, उसके कदम जहां लगे मेरी निशानी वो इसलिए है कि मैंने उस जगह को अपने लिए खास कर लिया, मैंने उसे हिस्टोरिकल प्लेस बना दिया। जब तक कोई हाजी वहां पर दौड़ नहीं लगाता या फिर तेज कदमों से चलता नहीं है, ये सफा व मरवा की साई अगर वो नहीं करता, तो तब तक ना उसका उम्रा है ना उसका हज है, चाहे जितने मर्जी चक्कर लगा ले और जहां मर्जी कुछ कर ले, जब तक मेरे वलियों के कदमों यानी कदमैन शरीफैन के पीछे पीछे वो नहीं चलता, तब तक ना वो उम्रा कबूल होता है और ना ही तब तक वो हाजी बनता है। तो पता चला हाजी कैसे बनते हैं? सिर्फ फर्ज अदा करके नहीं, फर्ज अदा करना और है और हुजूरी वाली हाजिरी देना और है। आप जो यहां तशरीफ फरमा हैं, आप हुजूरी सीखने आए हैं, हुजूरी लेने आए हैं। ये जो हुजूरी वाली बात है वो इस अंदाज से है कि ये औलियाए किराम सिखाते हैं। हज के 5 अरकान हैं, उनको लेकर मैं 5 लाइनें आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर इजाजत चाहता हूं। हज के अंदर सबसे पहले है एहराम। एहराम क्या सिखाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एहराम, सेकेंडली तवाफ, और थर्ड सफा व मरवा की साई, और फोर्थ वकूफ अरफात, और फिफ्थ यानी 5वां कुर्बानी। तो ये 5 वो चीजें हैं जो एक हाजी हज के अंदर, अरकान इसे न कहें, ये हज के अंदर हर हाजी जो है वो अदा करता है। तो एहराम किस बात की निशानी है? अपनी शनाख्त को मिटाने की। ये शनाख्त जो मेरी और आपकी है, इसे उतार के साइड पे रखो और 2 कपड़े पहन लो और हर एक जैसे हो जाओ। तो अपने नफ्स की कुर्बानी, अपने आप को खत्म करना और अल्लाह के रंग में रंग जाना। वो जो अल्लाह का रंग है वो दरअसल रंगे मुस्तफा है। आका ने पहने थे तो हम पहनते हैं ना।
आका ने अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधा था तो हम बांधते हैं। तो इस बात को हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने अल्फाज में बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जामाए एहराम बपोश अज खुदी नाशवी महरम ब असरार हक। इसकी ट्रांसलेशन ये है कि वियर द गारमेंट ऑफ एहराम बाय शेडिंग योर ईगो, कि ये हिराम बांधना अपनी खुदी को खत्म करने की बात है। और आगे फरमाया सो दैट यू मे बिकम इंटीमेट विद द सीक्रेट्स ऑफ ट्रुथ। तो जब तू अपनी पहचान खत्म करके अपनी ईगो और अना को मिटाकर अल्लाह की बारगाह में जाता है तो फिर जाते हक तुझे अपनी बारगाह का कुर्ब अता फरमाती है, और फिर तू अल्लाह के रंग में शामिल होकर और अल्लाह के रंग को अपनाकर जो कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम का दिया हुआ रंग है, फिर तू इसरार हक पा लेता है, इसरार हज पा लेता है, जो आज का टॉपिक है इसरार और रमूज हज। तो अल्लाह ताला के इसरार और रमूज हासिल करने के लिए जब तक तू अपनी अना को खत्म नहीं करता तब तक तुझे हज के इसरार नहीं मिल सकते। और ये इसरार और रमूज देता कौन है? अल्लाह के वली मुर्शिद कामिल। मैं आपको बताऊं, दुनिया घूमने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जिसका मुर्शिद नहीं है ही इज ऑन द रॉन्ग पाथ, वो एक गलत रास्ते पर है, और जिसका मुर्शिद है ही इज ऑन द राइट पाथ, और वो है सिरात मुस्तकीम। और ये दर्स सूरह फातिहा देती है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात मुस्तकीम क्या है? अगर मैं एक जुमले में कहूं तो वलियों का रास्ता। अगर आप चाहते हैं कि आप सीधे रास्ते पर रहें तो वलियों के रास्ते को अपना लें, आप हक पर हैं। और हर नमाजी हर रोज हर नमाज की हर रकत के अंदर सिराते मुस्तकीम मांगता है, वलियों का रास्ता मांगता है। मगर बहुत सारे वो लोग जो वलियों का रास्ता मांगते हैं नमाज में, बाहर जाकर वलियों के ही खिलाफ बातें करते हैं, वो राह हक पर नहीं। चाहे माथे पर मेहराब डाल लें, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे तबलीगें कर लें, आलमी मुबल्लिगीन इस्लाम बन जाएं, ना अल्लाह की बारगाह में उनके हज कबूल होते हैं, और ना ही नमाजें कबूल होती हैं, और ना ही तबलीगें कबूल होती हैं। और ये मेरा फतवा नहीं, ये कुरान की बात है, ये कुरान की बात है। डिटेल में जाने का वक्त नहीं, अदरवाइज मैं जाता, पर इशारा करके आगे चलता हूं। दूसरी बात है तवाफ काबा करना। तवाफ काबा दरअसल इस बात की अलामत है कि मोमिन अपनी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द करता है, यानी दिल भी काबा की तरफ झुका होना चाहिए और पाक होना चाहिए। सिर्फ आपके कपड़े पाक ना हो, सिर्फ आपका जिस्म पाक ना हो, सिर्फ आपका किरदार पाक ना हो, बल्कि आपका दिल भी पाक हो। और वो कहां से मिलता है? आस्ताना आलिया नेरिया शरीफ से, आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ से। मुझे 3 मिनट दीजिएगा सर, 3 मिनट, जज़ाकुमुल्लाह। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दिल बदस्त आवर के हज अकबरस्त। मैं क्या तर्जमा सुनाऊं, आपको तो जुबान नहीं याद होगा। नूर टीवी से लेकर किबला शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के कुर्ब तक आपने तो सब कुछ वो सुना है, और वो जाना है, और वो जो है मंजिलें तय की हैं कि जिनका ख्वाब ही दुनिया में लोग देखते हैं। आप खुशबख्त लोग हैं जो सिद्दीकी हैं, जो इस दर के साथ जुड़े हुए हैं। तो मौलाना फरमाते हैं दिल बदस्त आवर के हज अकबरस अज हजारों काबा यक दिल बेहतरस। क्या फरमाते हैं कि विन अ हार्ट फॉर दैट इज द ग्रेटर पिलग्रिमेज, वन हार्ट इज बेटर देन 1000 काबा। और इसका एक तर्जुमा ये भी है कि जिसका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के याद में लग जाए और अल्लाह के बंदों के साथ लग जाए, तो उसका दिल जो है, यानी आप तवाफे काबा कर रहे हैं, तो तवाफे काबा करके आप समझते हैं मैं हाजी हूं, तो ये आप ठीक कर रहे हैं, पर काबे के अंदर अल्लाह नहीं रहता। अल्लाह ने काबे को अपना घर डिक्लेयर किया है। हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह काबा के अंदर रहता है, पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, और हदीस कुदसी है, क़ल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, बंदाए मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। तो देख, तू एक काबे के गिर्द तवाफ करके खुद को बख्शा हुआ समझता है, तो बता जिस दिल के अंदर खुद रब रहता है, जिस दिल को खुद रब अपना अर्श कहता है, तो उस दिल की जब तू जियारत करता है तो बता फिर तेरे
تیری شان اور تیری شان و شوکت اور تیری عظمت کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرشد دادی دار و باہو لکھ کروڑاں حجاں ہو. یہ اسرار اور رموز ہیں حج کے جو حاجی کو سکھاتے ہیں. 2 باتیں بچی ہیں میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. صفا و مروہ کی سعی اس کی بات ہو چکی اور یہاں پر خواجہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں در طلب گر صد بیاں با گزری عاقبت درخیش او را بنگری. اس کا ترجمہ یہ ہے even if you cross 100 desert in search، یعنی اگر تو دنیا کے چٹیل میدان اور ریت کے میدان تو ڈھونڈتا پھرے، ریسرچ کرتا پھرے اور تلاش کرتا پھرے کہ راہ حق مجھے مل جائے، مگر وہ فرماتے ہیں in the end you will find him within yourself. جا مرشد کے پاس، جا اپنے شیخ کے پاس. اور تو صفا و مروہ کے چکر جو لگاتا ہے، پھر ڈیزرٹ بھی گھومتا ہے اور عرب کے ریگستان بھی گھومتا ہے اور پھر دنیا کے میدان بھی گھومتا ہے، مشرق سے مغرب تو ورلڈ ٹور کر کے ساری دنیا دیکھ کر رب کو پہچاننا چاہتا ہے. یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ تجھے بہت ساری معلومات مل جائیں گی، پر تو اگر رب کو پہچاننا چاہتا ہے تو اے حاجی جو تو صفا و مروہ پر دوڑ لگانے کے لیے گیا ہے، صفا و مروہ پر دوڑ لگانے سے پہلے جا اپنے مرشد کے پاس اور اپنے مرشد کے سامنے اپنے دل کو خالی کر دے اور اپنے دل کے اندر اپنے مرشد کی محبت بسا لے. پھر جو تیرا شیخ تجھے بتائے گا نا کہ تو اللہ کو باہر ڈھونڈتا تھا، وہ تو تجھے تیرے اندر ہی مل جائے گا. تو صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کا طواف کرنا اور صفا و مروہ کی سعی کرنا یہ فرض اور واجب کی ادائیگی تو ہے ہی، پر جب تو شیخ کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کے اہل دل کی نظر کے اندر رہ کر تو اگر حج کرے گا تو پھر یہ تیرا حج حضوری والا حج ہوگا. اور میری آخری بات یہ ہے کہ قربانی، یہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، بہت ساری پوسٹیں آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کہتے ہیں جانور قربان کرنے سے پہلے نفس کو قربان کرو. یہ بات ٹھیک ہے، نفس کی قربانی دو، اپنی ایگو کی قربانی دو اور اپنی ذات کی قربانی دو، مگر فرمایا کبھی کسی کا دل نہ توڑنا. کیونکہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، اگر تو ٹانتے آیا ہی ہیں تو بڑا ظالم ہو ہی گیا ہے. تینو ترس اگر نہیں آندا اور اگر تو بہت زیادہ سخت دل اگر تو ہو ہی گیا ہے تو جو دل کرتا ہے ڈھا دے، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھائیں رب دلاں وچ رہندا. عام لوگوں کے دلوں کی اگر یہ بات ہے جو جس دل میں مرشد کا نور شامل ہو، جس دل میں شیخ کا نور شامل ہو، جس دل میں شیخ کی اللہ کے ولیوں اور ولیوں سے اوپر اللہ کے نبی کے صحابہ اہل بیت اور آقا علیہ السلام کی محبت موجود ہو، اس دل کو تو پھر کبھی نہ ڈھانا. کیونکہ اگر اس دل کو تو نے توڑا اور اس دل کا حق مارا، اس دل کو دکھایا اور اس ہارٹ کو بریک کیا تو پھر رب بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائیں گے، مرشد تو ناراض ہوگا ہی. یوں سمجھنا تیرے لیے ساری کائنات روٹھ گئی ہے. اس لیے جو اہل دل کا دل ہے اسے کبھی نہ توڑنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی بھی اللہ والوں کی اور مرشد والوں کی بے توقیری نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، ڈس ریسپیکٹ نہ کرنا. کیونکہ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی فرماتے ہیں بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو، بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو وہ نامراد ہوتا ہے. بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو وہ نامراد ہوتا ہے. اللہ ہمیں با ادب، با نصیب، با مراد بنائے. بے ادبی، بد نصیبی اور نامرادی سے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ملے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا سے ملے، چاہے وہ سکول و کالج و یونیورسٹی سے ملے، چاہے ہماری فرینڈ سرکل یا گیدرنگ سے ملے، ہم بے ادبی نہیں کریں گے. اگرچہ کسی چیز کا ہمیں نالج نہ ہو، وعدہ کیجئے اپنے مرشد کے در پر آ کر، وعدہ کیجئے قرآن کا صدقہ اور حج کا صدقہ، کبھی بھی ہم اپنی زبانوں کو بے ادبی میں دراز نہیں کریں گے. کیونکہ بے ادب چاہے کسی کا بھی ہو نامراد ہوتا ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے لب کشائی کا موقع بخشا، آپ سب احباب کا، محققین علماء کا کہ آپ کی میں نے سمع خراشی کی. اللہ تعالی حاضری قبول کر کے ہمیں بھی قبلہ شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرق کا مغرب دین کا ڈنکا بجانا، آقا علیہ السلام کے عشق و محبت کی شمع جلانا، اولیاء کا ادب اور تعلیمات انسانوں اور امت تک پہنچانا نصیب کرے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.